Hello friends, I am Samir Avasthi and Associate Professor in Department of Computer Science and Engineering from Babu Banarsi Das, Northern India Institute of Technology, Lucknow. Today I am going to teach you Object Oriented System Design and my topic is UML Architecture. First of all, what is UML architecture? UML architecture is any real world system that is used by different users. Or you can define you can define the users can be a developers, testers, business person, analyst and many more. Hence, before designing a system, the architecture is made with different perspective in mind. The most important part is to visualize the system from the perspective of different user. Better we understand, the better we can build the system. Means UML architecture, before going to generate UML diagram, we have to first construct the UML architecture. It's a real world system and it is used by different user. Different user में क्या हो सकते हैं, like developers, testers, business person, analyst और different person जो इनको यूज कर रहे हैं, UML diagram यूज कर रहे हैं, वो आर्किटेक्चर को यूज करेंगे. Next slide is UML play an important role in defining different perspective of a system and these perspective are design, implementation, process and deployment. तो बेसिकली ये जो 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 4 पार्ट हैं, ये डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस, ये 4 पार्ट हैं इसके. तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है डिजाइनिंग का, दैट इज ओके. फर्स्ट पार्ट है डिजाइनिंग. डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन के बाद आता है सेकंड इज द इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड इज द प्रोसेस एंड 4 इज द डिप्लॉयमेंट. बेसिकली दीज आर द 4 पिलर ऑफ यूएमएल आर्किटेक्चर. नाउ यूएमएल आर्किटेक्चर, द सेंटर इज द यूज केस. यूज केस व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर को डिफाइन करने के लिए. द सेंटर इज द यूज केस व्यू which connect all these 4 part. कौन कौन से 4 part? डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस एंड डिप्लॉयमेंट. इनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं? यूजिंग यूज केस. अ यूज केस रिप्रेजेंट द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, हैंस अदर पर्सपेक्टिव्स कनेक्टेड विद द यूज केस. कौन कौन से अदर पर्सपेक्टिव हो सकते हैं? फर्स्ट इज द डिजाइन, सेकेंड वन इज द इम्प्लीमेंटेशन, प्रोसेस एंड डिप्लॉयमेंट. इनका मतलब क्या है आर्किटेक्चर को बनाने में? Design of a system consists of classes, interface and collaboration. UML provide class diagram, object diagram to support this. कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे क्लासेज आप बनाओगे? आर्किटेक्चर क्या है? आर्किटेक्चर में क्लासेज आती हैं, इनका इंटरफेसेज हैं, इनका कोलैबोरेशन हम करते हैं डिजाइनिंग पार्ट का, तो इनको आपस में कैसे कनेक्ट करोगे वो डिजाइन पोर्शन का पार्ट होता है. Implementation define the component assembled together to make complete physical system. Implementation part में क्या आता है? डिफरेंट जो हमने component assemble किए हैं उनको आपस में merge करके एक complete system create करना. This is the part of the implementation process. UML component design diagram is used to support the implementation perspective. UML component diagram से हम implementation को represent करेंगे. Now the next is the process. Process define the flow of the system. Hence the same elements are used in design are also used to support this perspective. Process एक part हो गया. Next is the deployment. Deployment बहुत important है. Deployment represent the physical node of the system that forms the hardware. UML deployment diagram is used to support this perspective. Now UML modeling, जैसा कि मैंने आपको अपनी previous slide में बताया था, there are 3 type of UML modeling. First is the structural modeling, then behavioral modeling and architectural modeling. अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे structural modeling, behavioral modeling और architectural modeling में क्या है. Now structural modeling capture the static feature of a system.
means they consist of the following diagrams, means class diagram, object diagram, deployment diagram, package diagram, composite structure diagram and component diagram. इन सारे डायग्राम को स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के थ्रू हम सीखते हैं, पढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग कंसिस्ट ऑफ कैप्चर ऑल दीज स्टैटिक फीचर ऑफ ए सिस्टम. स्टैटिक फीचर के लिए हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग को डिफाइन यहाँ पे यूज करेंगे. एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में और क्या होता है, स्ट्रक्चरल मॉडल रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टम एंड दिस फ्रेमवर्क इज प्लेस वेयर ऑल द कंपोनेंट एग्जिस्ट. Hence the class diagram, component diagram and deployment diagram are the part of structural modeling. अगर आपसे कोई पूछे, सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के लिए कौन कौन से डायग्राम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बोलना है क्लास डायग्राम हम यूज करते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के लिए, देन कंपोनेंट डायग्राम यूज करते हैं, डिप्लॉयमेंट डायग्राम. तीन डायग्राम जो हैं वो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. स्टैटिक मॉडलिंग के लिए हम यूज करते हैं, स्टैटिक मॉडल बनाते हैं. यहाँ पे ये तीनों डायग्राम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है. दे ऑल रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स एंड द मैकेनिज्म टू असेंबल देम. नाउ इसके बाद आता है बिहेवियरल मॉडलिंग. बिहेवियरल मॉडलिंग में हम it consists of another 3 diagram like activity diagram, interaction diagram and use case diagram. Behavioral modeling होती क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं. Behavioral model describe the interaction in the system. It represent the interaction among the structural diagram. अभी जो हमने structural diagram बनाए, static diagram बनाए, behavioral model उनको आपस में कनेक्ट करना बताता है कि वो मॉडल आपस में कनेक्ट कैसे होंगे. तो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक पोर्शन हो गया. तो इसको बिहेवियरल मॉडलिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ डायनेमिक मॉडल. ये डायनेमिक नेचर हो गया इसका सिस्टम के लिए. यहाँ पे अगेन 3 डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम है, इंटरेक्शन डायग्राम है, यूज केस डायग्राम. ये तीनों डायग्राम यूज कंसिस्ट होंगे, किस में आएंगे, बिहेवियरल के मॉडलिंग के में आते हैं तीनों. इसके बाद आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, तीसरा फीचर जो आता है वो आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है. आर्किटेक्चरल मॉडल रिप्रेजेंट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम. आपने स्टैटिक मॉडल बना लिया, आपने डायनेमिक मॉडल बना लिया, देन इसके बाद आप इन दोनों के बाद इसको आप आर्किटेक्चरल मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो. तो आर्किटेक्चरल मॉडल रिप्रेजेंट द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ द सिस्टम. Now it contain both the structural behavior element of the system. Architectural model can be defined as a blueprint of the entire system. So पैकेज डायग्राम कम्स अंडर आर्किटेक्चरल मॉडलिंग. तो यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टैटिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल हमने क्रिएट किया, स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल मॉडल बनाया. इसके बाद हमने आर्किटेक्चरल मॉडल के थ्रू इसको एक पैकेज में रैपिंग कर दी. तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं पैकेज डायग्राम कम्स अंडर द आर्किटेक्चरल मॉडल. तो पैकेज डायग्राम कहाँ पे आएगा, पैकेज डायग्राम आर्किटेक्चरल मॉडल के अंदर आएगा. और इसको आर्किटेक्चरल मॉडल में इन दोनों जो प्रीवियस मॉडल हमने पढ़े थे इनको हम रैप अप कर देते हैं, एक पैकिंग बना देते हैं, पैकेज के थ्रू इसको अलग कर देते हैं. नाउ अब हम सीखते हैं यूज केस डायग्राम. यूज केस डायग्राम जो हम अभी बताया था, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट किया जाएगा. यूज केस डायग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज यूज केस डायग्राम. यूज केस डायग्राम होता क्या है. तो यूज केस डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. It encapsulates system functionality by incorporating use cases, actors and the relationship. तो यूज केस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर हमारे पास जो यूज केस डायग्राम में आएगा, एक्टर्स आ जाएंगे, बिहेवियर ऑफ एक्टर्स, दिस वन इन केसेज, यूज केसेज, these are the main features of यूज केस डायग्राम. यूज केसेज, एक्टर्स और उनकी रिलेशनशिप आपस में क्या है. इट इज ए मॉडल द टास्क, सर्विसेज एंड फंक्शन रिक्वायर्ड बाय ए सिस्टम, सब सिस्टम ऑफ एन एप्लीकेशन. इट डिपिक्ट द हाई लेवल फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम एंड ऑल्सो टेल हाउ द यूजर हैंडल अ सिस्टम. यूज केस डायग्राम अगर मेरे पास है, सपोज आई एम ए यूजर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन और मुझे एक UML डायग्राम क्रिएट करना है, तो मुझे यूज केस डायग्राम बनाना आना चाहिए. और अगर मैं यूज केस डायग्राम बनाना जानता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं अब अपने ये जो हाई लेवल फंक्शनैलिटी है इसको हैंडल कर सकता हूँ सिस्टम की. तो यहाँ पे यूज केस डायग्राम की बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूज केस डायग्राम. पर्पज ऑफ ए यूज केस डायग्राम,
The main purpose of the use case diagram is to portray the dynamic aspect of a system. कैसे फ्लो हो रहा है, डायनेमिक डेटा फ्लो कैसे कर रहा है सिस्टम में. जो मॉडल हम क्रिएट करने जा रहे हैं, जो हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिजाइन के थ्रू एक मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं, यूएमएल यूजिंग यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूएमएल के थ्रू जो मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं, इसमें कैसे यूज कर रहे हैं, क्या एस्पेक्ट है, तो ये हमें यूज के डायग्राम से मिलता है. इट एक्यूमुलेट द सिस्टम रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड both internal as well as external influence. It invoke a person, use case and several things that invoke the actor and element accountable for the implementation of use case diagram. Use case diagram also represent how an entity from the external environment can interact with a part of the system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके थ्रू हम बताते हैं कि एंटिटी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एंटिटी है वो कैसे आपको इंटरेक्ट करेगी सिस्टम के साथ. यहाँ पे ये इसके थ्रू बताया जा सकता है यूज केस डायग्राम के थ्रू. नाउ गोइंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू ड्रॉ द यूज केस डायग्राम. अब अगर यूज केस डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं यूज केस डायग्राम को. इट इज इसेंशियल टू एनालाइज द होल सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग with drawing the use case diagram and then the system functionality are found. जब मैं यूज केस डायग्राम को बनाऊंगा, एनालाइज करूंगा अपने सिस्टम को, उसके बाद यूज केस डायग्राम में बनाऊंगा तो मुझे सिस्टम में जितनी भी फंक्शनैलिटी हैं वो क्लियर हो जाएंगी. एंड वंस एवरी सिंगल फंक्शनैलिटी इज आइडेंटिफाइड देन दे आर देन ट्रांसफॉर्म इनटू द यूज केस टू बी यूज्ड इन द यूज केस डायग्राम. एक बार अगर मेरे पास सारी फंक्शनैलिटी क्लियर हो गई हैं तो मैं उसको यूज केस डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ. आफ्टर दैट वी विल एनलिस्ट द एक्टर दैट विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम. उसके बाद एक्टर का रोल प्ले होता है कि एक्टर कैसे सिस्टम का उसमें कैसे रोल प्ले करेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ एक्टर. द एक्टर आर द पर्सन और अ थिंग दैट इन्वोक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम. तो एक्टर यहाँ पे वो है, वो एक्टर को हम कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा एक्टर कैसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं, क्या होता है, व्हाट इज एक्टर, एग्जैक्टली क्या है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा. तो एक्टर आर द पर्सन और द थिंग दैट इन्वोक द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम. बेसिकली ये डेफिनेशन हो गई एक्टर की, एक्टर होता क्या है. नाउ हाउ टू ड्रॉ अ यूज केस. इट मे बी अ सिस्टम और ए प्राइवेट एंटिटी. जो एक सिस्टम में एक प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, इन द सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है, सच दैट इट रिक्वायर एन एंटिटी टू बी पर्टिनेंट टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम टू विच इट गोइंग टू इंटरेक्ट. यहाँ पे वो जो एंटिटी जिसको आप यूज केस के लिए यूज कर रहे हो उसका पार्ट भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर का भी एंटिटी हो सकती है. वंस बोथ द एक्टर एंड द यूज केस आर एनलिस्ट, द रिलेशन बिटवीन द एक्टर एंड यूज केस सिस्टम इज इंस्पेक्टेड. It identify the number of time an actor communicate with the system. Basically, an actor can interact multiple time with the use case or system at a particular instance of time. एक बार यूज केस आपने बना लिया तो यूज केस डायग्राम में जो एक्टर है वो एक बार भी इंटरेक्ट कर सकता है और एक से ज़्यादा बार भी इंटरेक्ट कर सकता है. बेसिकली यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बार इंटरेक्शन हो गया एक्टर के थ्रू तो अब दोबारा नहीं. तो यहाँ पे ये एक्टर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टर कम्युनिकेट विद द सिस्टम. ओके, यूज केस आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टर कम्युनिकेट विद द सिस्टम. बेसिकली एन एक्टर कैन इंटरेक्ट मल्टीपल टाइम्स with a use case or system at a particular instance of time. Now रूल, ये रूल अभी हम रूल देख रहे हैं, उसमें कुछ जैसे आपको बताया मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड नोटेशन को भी यूज करते हैं जब भी हमें यूज केस डायग्राम बनाने होंगे. स्पेसिफाइड नोटेशन भी हम जहाँ पे भी रिक्वायर होंगी वहाँ पे यूज करेंगे. Now the most significant interaction should be represent among the multiple number of interaction between the use case and the actor. ओके, दीज आर द सम रूल्स. ये कुछ रूल्स हैं जो कि यूज केस डायग्राम बनाने में हम यूज करते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ यूज केस डायग्राम. इम्पॉर्टेंस, यूज केस की इम्पॉर्टेंस, अगर यूज केस डायग्राम नहीं होगा तो आप यूएमएल डायग्राम ही नहीं बना सकते बेसिकली. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज द टू आइडेंटिफाई फंक्शन एंड हाउ रोल्स इंटरेक्ट विद देम. फंक्शन को आइडेंटिफाई करना और उनका रोल
क्लियर बताना कि कैसे उनका रोल क्या है, कैसे फंक्शन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूज केस डायग्राम इज टू आइडेंटिफाई फंक्शन and how role interact with them. Now, for a high level view of a system, especially useful when presenting to managers or stakeholder, you can highlight the role that interact with the system and the functionality provided by the system without going deep into inner working of the system. तो यहाँ पे हाई लेवल व्यू जो सिस्टम का हमें मिलता है उसके लिए भी यूज केस डायग्राम हम यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर. दिस माइट साउंड सिंपल बट इन लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अ सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड एज एन एक्सटर्नल रोल इन अनदर यूज केस. यूज केस डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए. तो फॉर अ यूज केस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट. 4 ऑब्जेक्ट की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. ये 4 ऑब्जेक्ट क्या क्या है? एक्टर, अभी बात कर रहे थे एक्टर क्या होता है. नाउ यूज केस एंड दिस सिस्टम एंड द पैकेज, दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट फॉर यूज केस डायग्राम. नाउ व्हाट इज एक्टर? अभी मैंने बताया एक्टर. एक्टर in a use case diagram is an entity that perform a role in one given system. This is an actor. इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये एक्टर है. This should be a person, organized or an external system and usually drawn like skeleton shown below this. इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक्टर है और इट कुड बी एनीथिंग. Like it could be a person, it could be an organization or something else. Use case. Use case को कैसे represent करते हैं? And use case represent a function or an action within the system. It is drawn as an oval shape and named within the function. Suppose कीजिए मुझे एक यूज केस ड्रॉ करना है, तो यूज केस के लिए मैं एक ओवल शेप ड्रॉ करूंगा और इसके अंदर उसका नाम लिखूंगा, दिस वन यूज केस. Okay, now going toward the next slide, that is system. The system is used to define the scope of the use case and drawn as a rectangle. This an optional element but useful when you are visualizing large system. For example, you can create all the use case and then use the system object to define the scope covered by your project, or you can even use it to show the different area covered in the different releases. Means अगर मैं सिस्टम को डिफाइन करूं तो हम सिस्टम को अगर मैं पिक्टोरियल व्यू में रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस इज अ सिस्टम. इस तरीके से हम सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल व्यू में. और इट इज़ यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द यूज केस. यूज केस जो हमने ड्रॉ किए हैं उनका स्कोप क्या है, इसको बताएगा हमारा सिस्टम. फाइनली द पैकेज. पैकेज as you know already know, the package is another optional element that is extremely useful to complex diagram. Similar to class diagram, package are used to group together use case. जैसे क्लास डायग्राम में हम करते थे ऐसे ही यहाँ पे पैकेज के लिए हम यूज करेंगे. पैकेज आर यूज टू ग्रुप टुगेदर यूज केसेज. यूज केसेज को आपस में ग्रुपिंग करने के लिए हम पैकेज यूज करेंगे. दे आर ड्रॉन लाइक द इमेज ऑन दिस लाइक. अब इसको कहते हैं, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ बॉक्स बनाऊंगा और इसके ऊपर पैकेज का नाम इस तरीके से लिख दिया जाएगा, दिस इज द पैकेज नेम. इस तरीके से हम यहाँ पे पैकेज को अपने डिफाइन करेंगे. नाउ अभी आपने देखा जैसे ये कुछ पार्ट मैंने आपको बताए थे. यूज केस डायग्राम में ये 4 चीज़ें होती हैं और कैसे किस तरीके से वर्क करते हैं. तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आता है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एक्टर. एक्टर, यूज केस एंड सिस्टम एंड पैकेज. 4 ये जो ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, इनके बिहाफ पे ही हम यूज केस को क्रिएट कर सकते हैं. तो इसमें आपने देखा एक्टर क्या है. एक्टर सिंपली आपने इस तरीके से बना दिया है, दिस इज एन एक्टर. ये एक्टर है. इस तरीके से आप यहाँ पे एक्टर को डिफाइन कर लेंगे, स्केलेटन टाइप का लाइक दिस. इसका भी इम्पोर्टेंस है. और
यूज केस डायग्राम की लिए जब आप ड्रॉ करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनफैक्ट एक्टर की ही है, इसका रोल सबसे ज़्यादा है. मेन पर्पज ऑफ अ यूज केस डायग्राम टू पोर्ट्रे द डायनेमिक आस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. जो भी कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर रहा है, ये सब आपको बताना है यूज केस डायग्राम के थ्रू. अब यूज केस डायग्राम इट एक्यूमुलेट द सिस्टम रिक्वायरमेंट विच इंक्लूड बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी यूएमएल डायग्राम को बनाना शुरू करते हैं. यूएमएल डायग्राम को बनाते समय वहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हैं डायग्राम को ड्रॉ करने में, उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, उनको कंसिडर नहीं करते, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको जब भी यूज केस डायग्राम बनाना है तो वहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस हैं उनको कंसिडर करना होगा. इट इन्वोक यूज केस डायग्राम इन्वोक अ पर्सन, यूज केसेज एंड सेवरल थिंग दैट इन्वोक द एक्टर एंड एलिमेंट अकाउंटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूज केस डायग्राम. तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट अकाउंटेबल हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज केस डायग्राम को, उसको इन्वोक करता है. इन्वोक करने के लिए यूज केसेज यूज किया जाता है. इट रिप्रेजेंट हाउ एन एंटिटी फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन इंटरेक्ट विद द पार्ट ऑफ द सिस्टम. सबसे ज़रूरी है कि ये हमें इससे हमें पता क्या लगता है कि कोई भी एंटिटी है किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो कैसे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करती है, ये हमें यहाँ पे पता लगेगा. सपोज एनी एंटिटी कैन, दिस इज एन एंटिटी, कोई भी आप एंटिटी ले सकते हैं एक्सटर्नल इंटरनल, वो सिस्टम के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है ये भी हमें यूज केस के थ्रू पता लगेगा. तो पर्पज इसका क्लियर हो गया. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए. अब इट इज़ इसेंशियल टू एनालाइज द होल सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग विद ड्राइंग अ यूज केस एंड देन द सिस्टम फंक्शनैलिटी आर फाउंड. मतलब आप जब भी यूज केस डायग्राम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी हैं सिस्टम में, वो उसमें से कोई एक भी स्किप तो नहीं हो रहा है. अगर कोई भी एक फंक्शनैलिटी स्किप हो जाएगा, अगर नहीं हमें मिलेगा, तो हमारा पूरा यूज केस डायग्राम जो है वो मिसलीड करेगा आगे की फंक्शनैलिटी को. तो यहाँ पे सबसे मेन पर्पज है, इट इज़ इसेंशियल टू एनालाइज द होल सिस्टम बिफोर स्टार्टिंग विद ड्राइंग अ यूज केस डायग्राम. यूज केस डायग्राम से पहले हमें अपने पूरे सिस्टम को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा. एंड देन द सिस्टम फंक्शनैलिटी आर फाउंड. उसके बाद जो सिस्टम फंक्शनैलिटी फाउंड होंगी उनके थ्रू हम यूज केस डायग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम. And once every single functionality is identified, they are then transformed into use cases to be used in the case diagram. After that, we will enlist the actor that will interact with the system. उसके बाद हम एक लिस्ट तैयार करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और जो हमारे उस लिस्ट में जितनी भी एंटिटी हैं, आइदर वो आउटसाइड से हों, बाहर से हों फंक्शन मॉडल के, या फिर विद इन द मॉडल हों, विद इन द सिस्टम हो, उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी एंटिटी हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. देन एक्टर यहाँ पे एक्टर का रोल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे काम कौन बता रहा है कि कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ये बता रहा है मैं एक्टर. द एक्टर आर द पर्सन और अ थिंग दैट इन्वोक द फंक्शनैलिटी. जो भी फंक्शनैलिटी है उसको इन्वोक करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो है एक्टर. इट मे बी अ सिस्टम और अ प्राइवेट एंटिटी सच दैट इट रिक्वायर एन एंटिटी टू बी pertinent to the functionality of the system to which it going to interact. मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, जो भी सिस्टम है प्राइवेट एंटिटी है, और जो भी एंटिटी है जिसको हम उसकी फंक्शनैलिटी के थ्रू इंटरेक्ट कराना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे वो प्राइवेट एंटिटी हो या उसका पार्ट हो सिस्टम का, उसको एक्टर के थ्रू, एक्टर हमने अभी डिफाइन किया, उसके थ्रू हम इंटरेक्ट कराएंगे सिस्टम के साथ. वंस बोथ द एक्टर and the use case are enlisted, the relation between the actor and use case system is inspected. एक बार enlist हो गया हमारे पास, उसके बाद हमें क्या देखना है,
उसके बाद हमें ये चेक करना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो पहले तो एंटिटी हम एनलिस्ट कर लेंगे। वंस द एक्टर एंड यूज केस आर एनलिस्टेड, द रिलेशन बिटवीन द एक्टर एंड यूज केस सिस्टम, उसके बाद उसको इंस्पेक्शन होगा, उसको चेक किया जाएगा। इट डिफाइन द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टर कम्युनिकेट विद द सिस्टम। बेसिकली एन एक्टर कैन इंटरेक्ट मल्टीपल टाइम विद द यूज केस और सिस्टम एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो नंबर ऑफ टाइम्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्टर कम्युनिकेट विद द सिस्टम। और ऐसा होता है जब हम डायग्राम बनाते हैं, यूज केस डायग्राम बनाते हैं, तब क्या होता है कि ये जो है वो मल्टीपल टाइम इंटरेक्ट करता है। एक बार ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरेक्शन हो गया उसके बाद वो एंटिटी वो उसके बाद उसकी यूज ही नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली एक्टर कैन इंटरेक्ट मल्टीपल टाइम विद अ यूज केस और सिस्टम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो एक एक्टर मल्टीपल टाइम में इंटरेक्ट करता है, बेसिक फंडा ये है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्टर विद अ यूज केस मस्ट बी डिफाइंड इन एन अंडरस्टैंडेबल वे। अब जो एक्टर है और यूज केस है उसका कम्युनिकेशन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इस किसी भी तरीके से आपने इसको बता दिया और उसका रोल जो है वो प्री डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक्टर और यूज केस के बीच का डिफाइंड होना चाहिए और पहले से आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्पेसिफाइड नोटेशन टू बी यूज्ड एज व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी हमें रिक्वायरमेंट हो तो स्पेसिफाइड नोटेशंस हमें यूज करने हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड among the multiple number of interaction between the use case and the actor, between the use case and the actor। एक से ज़्यादा टाइम बार हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस आपको मैंने बता दिया। या 3 इसमें यूज केस डायग्राम में आइडेंटिफाई फंक्शन एंड हाउ रोल इंटरेक्ट विद देम फॉर अ हाई लेवल व्यू ऑफ अ सिस्टम, आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, इनका यूज करते हैं। नाउ यूज केस डायग्राम ऑब्जेक्ट, देयर आर 4 ऑब्जेक्ट बेसिकली, एक्टर, यूज केस, सिस्टम एंड पैकेज। एंड एक्टर को आपको किस पिक्टोरियल व्यू में आप इस तरीके से स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देन यूज केस के लिए आप ओवल शेप में यहाँ पे डिजाइन करते हैं, दिस इज एन ओवल शेप डायग्राम, और इसके अंदर यूज केस का नाम आप लिखेंगे। देन सिस्टम को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। पैकेज इज ए रेक्टेंगुलर शेप और यहाँ पे पैकेज का नाम लिखा जाता है, पैकेज नेम। दीज आर रेफरेंसेज जेम्स रैमबॉग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग एंड डिजाइन, PHI publication. Okay, thank you.